नमस्कार आदरणीय दोस्तों। अब देश में दिल्ली के साथ लोकसभा के साथ एक फेज इलेक्शंस का ख़त्म हो गया है और दूसरा फेज स्टेट्स वगैरह में अभी शुरू होने वाला है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस, human beings all are talking of Bharat. Bharat, which is and was believer of Vishwa Kutumbakam, Vasudev Kutumbakam, Sarvjan Hitai, Sarvjan Sukhai, whole world as a family. In last nearly a year, though as I told earlier all my friends, I started dabbling with politics during 1989 when Rajiv ji was coming up. He was the leader, and I tried for a ticket from Congress but gave up after his death. Then in 2009, I tried on Lok Sabha as an independent and then joined a party which said Bharat Punarnirman, though I still have to understand what is their goal of Bharat and Bharat Punarnirman. Then I tried AAP party because it came up with a big fanfare and Annaji supporting it at that time, but gave up because they all wanted money. Then came up 2024 and I tried for Lok Sabha from the party I stood in 2009 but failed because it was not clear who is leading, where, and etc. Tried Ghaziabad MLA seat but again gave up on various issues, and finally last in 2025 February I participated as a political observer or Prabhari of a Gathbandhan named Bharat Mahagathbandhan, a great movement in which nearly 104 parties joined and they put candidates on 68 seats in Delhi. Result, of course, is not important because first time, first comer, gathering so many people together, how many people they can succeed, how many candidates can succeed, etc., are questions which need lot of examination. But in all these experiments and efforts, what I learned is important. First, soon after the Delhi election, one ex-minister and 2 times MLA of AAP party declared he has become Berozgar Neta. This was published in newspapers, Hindustan Times Hindi in Ghaziabad, and I found it very eye-opening because during my working with the Mahagathbandhan, I observed a lot of good things. All parties wanted to lead the country. All party presidents literally were greatest leaders, and still to find candidates they have to hire a consultant,
an ex-AAP party political worker who has set up own consultancy for making people find elections, like one Bihar gentleman who also has now formed a party but was earlier helping many national parties to fight elections. He was clear. He worked for money. His team worked for money. But interesting part was his team consisted many presidents of existing registered parties. That was important. One side we had leaders who were wanting to make Vishwa Kutumbakam, and second side we had leaders who were working for a consultant to make elections work. And even more interesting is they all want to make world, stop wars, create new United Nations, European nations, Asian unions and whatnot. They all are officials of those organizations wanting to create a new world order. The point I am raising is politics a profession? Like IAS, IPS, IRS, etc.? Is it a paid job? Yes, elected members, MPs, MLAs are paid. But what about others? And they all need money. A 2 times MLA who must be getting pension also, if declares that he is बेरोजगार, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे नेताओं की, पर्टिकुलरली यंग नेताओं की जो देश बनाना चाहते हैं, विश्व बनाना चाहते हैं और बड़े बड़े मूवमेंट्स कर रहे हैं. पैसा कहाँ से आता है कोई नहीं जानता, लेकिन outwardly they all take donations from members or membership fees and use that for their good purpose. But is that sufficient? Can you create a national or international or even a local movement with that much of the money? ये हैं जो कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं कि देश फ्री है, डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है. मुझे भी फ्रीडम है, मैं भी बोल रहा हूँ, हालांकि मुझे भी कोई बेवकूफ़ कह सकता है कल को, ठीक है. लेकिन देश में 4,500-5 हज़ार पार्टियां हैं, जिसमें से 2,500 के से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं और बहुतों के पास दिल्ली में नेशनल लेवल सिंबल्स भी हैं. वो सब इनको यूज़ करना चाहते हैं और कॉर्पोरेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं. श्रीमान एक बात बताइए, या सभी नर नारी, महापुरुष, महादेवीस, एक बात बताइए, एक तरफ सिंबल को कैश करना चाहते हैं, मेंबरशिप को कैश करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? और बगैर पैसे के कौन सी इलेक्शन लड़ रहे हैं? गांधी जी को कोट करते हैं. उस समय देश गुलाम था, हर इंसान गुलाम था भारत का. तो गांधी जी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, वो कोई देश बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे. देश बनाने को तो उन्होंने छोड़ दिया, पॉलिटिकल नेताओं पे उन्होंने बना दिया. भारत के 3 पार्ट हो गए, ठीक है, और अभी कितने होंगे वो भविष्य बताएगा. कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस, क्या उन्हें समझ में आता है वो क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और नहीं समझ में आता है तो क्या ऐसे इंसानों के हाथों में आप देश का भविष्य छोड़ सकते हैं? कैसे इंसानों में के हाथों में वर्ल्ड का भविष्य छोड़ सकते हैं? अभी देखिए, वॉर चल रही है चारों तरफ. एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, उन्होंने शांति की बात शुरू की, तो दूसरे यूरोपियंस खड़े हो गए कि नहीं, हम न्यूक्लियर भी देंगे और हम ये भी देंगे और वो भी देंगे, वॉर कंटिन्यू करनी चाहिए. ऐसे इंसानों से, ऐसे समझदार पॉलिटिशियंस से जो विश्व को बर्बाद करके विश्व को बनाना चाहते हैं और कोटेशन देते हैं, टू बिल्ड यू नीड टू डिस्ट्रॉय.
वेरी गुड, करिए करिए, डिस्ट्रॉय कीजिए। तो भारत अभी थोड़ा बचा हुआ है, इसको मेरी इल्तिजा है, इसको थोड़ा छोड़ दीजिए और सभी नेतागण अपना यूरोप वगैरह में ट्राई कर लीजिए, वहाँ बहुत वैकेंसी है। यूक्रेन को भी आर्मी चाहिए और यूरोप को भी चाहिए, रशिया को भी चाहिए, सब ज्वाइन कर लीजिए, किसी ने मना तो किया नहीं है। यहाँ टीवी पे आके भाषण देने से और ये बताने से कौन लड़ रहा है क्या लड़ रहा है, बजाय उसके जाइए ना बैटलफील्ड में, लड़ के दिखाइए ना क्या होता है बैटलफील्ड, पता चलेगा। पॉलिटिक्स में दूसरों को लड़ाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इससे देश बनेगा क्या, राष्ट्र बनेगा क्या? मेरा आज आप सब लोगों से आने का, यहाँ रिक्वेस्ट करने का केवल एक ही उद्देश्य है। भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक सभ्यता है, एक कल्चर है, एक संस्कृति है जो सनातन का मतलब धर्म नहीं, सनातन मीन्स thousands and thousands of years before modern religions and modern leaders took birth or existing. उस भारत को बनाने के लिए पहले भारत को समझिए, भारत का मूल्य वैल्यू सिस्टम उसको समझिए, उसका आधार समझिए और फिर वसुंधराय कुटुंबकम या वासुदेव कुटुंबकम की तरफ बढ़िए। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स को समझिए, ये देश सेवा के लिए थी, देश को बनाने के लिए थी, देश को तोड़ने के लिए नहीं। आप ज़रा एग्जामिन तो कर लीजिए कितने नेता हैं जो देश बनाना चाह रहे हैं। जो बनाना भी चाह रहे हैं वो पहले तोड़ के अपने नाम के अंडर बनाना चाह रहे हैं। ऐसा देश बन जाएगा, विश्व बन जाएगा। इसलिए मेरी आज इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आदर्श आधुनिक भारत जो आज के संदर्भ में ठीक हो, सही हो, सोचिए। आज हमेशा रहेगा, वो कल भी था और आज हो गया, आज कल हो जाएगा और वो कल फिर भी आज रहेगा। आदर्श हमेशा रहते हैं। आधुनिकता समय की और उस समय के जीवों के ऊपर डिपेंड करती है। भारत एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, एक विचारधारा है। इनको समझिए और आदर्श आधुनिक भारत जो विश्व कुटुंबी है, सर्वजन हिताय भी है, सर्वजन सुखाय भी है और सबके भले के लिए है, उसको बनाने के लिए मूवमेंट शुरू कीजिए। परमात्मा सबको सफलता दे, सद्बुद्धि दे, भारत को अमर बनाए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।